جی السلام علیکم، میں ہوں رؤف کلاسر اور آپ کے سامنے نئے ویلاگ کے ساتھ حاضر ہوں۔ پرائم منسٹر آف پاکستان، سابق پرائم منسٹر آف پاکستان عمران خان صاحب جو ہیں، ان کی جو تقریر ہے اس کی ابھی تک اس کی گونج جو ہے نا وہ ختم ہونے میں نہیں آ رہی۔ انہوں نے بڑی دھواں دھار تقریر کی۔ اس طرح کی تقریر مجھے نہیں یاد پڑتا جو میری اس کی اپنے آپ کہنے جو عمر ہے، جتنی اب تک میں نے کوئی رپورٹنگ کی ہے، چیزیں دیکھی ہیں، سنی ہیں، پڑھی ہیں، اتنی زیادہ فاسٹ پیسڈ، زیادہ تھریٹننگ ٹون کے ساتھ میں نے کسی یہ لیڈر کی اب تک تقریر ہے وہ آپ کہہ سکتے ہیں نہیں سنی۔ اگرچہ بہت سے لوگ یہ کہہ سکتے ہیں کہ نواز شریف صاحب جو ہیں، مریم نواز صاحبہ جو ہیں، وہ یہ کام انہوں نے بھی کیے تھے، ان کے دور میں بھی ہوئے تھے جب وہ لندن سے تقریریں کرتے تھے، ان کی لندن سے تقریریں بین ہوئی تھی۔ یہ الطاف حسین صاحب کا بھی کہتے ہیں، وہ بھی کرتے تھے، لیکن اس لیول کا آ کے اتنے پاپولر لیڈر ہیں۔ آف کورس عمران خان صاحب بہت بڑی فالوئنگ ہے، نواز شریف صاحب کی اتنی بڑی فالوئنگ نہیں تھی، ماننا پڑے گا۔ جب وہ الطاف حسین صاحب تھے، کراچی، حیدرآباد، سکر کی حد تک تھے۔ سو عمران خان صاحب جو ہیں بگ فالوئنگ کے ساتھ، جو اس وقت ان کا وہ آ کے کہتے ہیں تو ان کا توتی بول رہا ہے کہ ہر جگہ پہ عمران خان صاحب کے نعرے لگتے ہیں، لہٰذا اپنی اس پاپولیرٹی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے وہ آ کے اس طرح کی تقریریں کر رہے ہوتے ہیں کہ جو میرا خیال ہے شاید عام حالات میں، عام کیا یا دیگر حالات میں کوئی اور لیڈر افورڈ نہیں کر سکتا تھا، کہنے کی جرت نہیں کر سکتا تھا۔ اور وہ ادارے ہیں جن کے خلاف تقریریں ہو رہی ہیں، ان میں بھی جرت نہیں ہو رہی کہ وہ خان صاحب جو ہیں ان کو روک سکیں۔ اگرچہ کوششیں جیسے پہلے آپ کو پتہ کی گئی تھی کہ خان صاحب کو ٹون ڈاؤن کیا جائے، ان کو ذرا تھوڑا سنبھالا جائے، پنجاب ان کو دیا جائے، ان پہ کیسز ہیں وہ ذرا تھوڑا سا ریلیف دیا جائے، ان پہ زیادہ ہاتھ جو ہے نا ہولا رکھا جائے۔ یا اسٹیبلشمنٹ کا خیال تھا کہ تھوڑا سا وہ کہتے ہیں کیرٹ اینڈ اسٹک تھا کہ کیسز بھی ہیں، خان صاحب کو ان سے بھی ڈرایا جائے، ڈسکوالیفیکیشن کے بھی یہ ان پہ تلوار لٹکا دو۔ اور خان صاحب تو اس کا امپیکٹ ہمیں نظر آیا بھی تھا کہ عارف علوی صاحب نے کوئی ملاقاتوں کا ارینج کروایا، پھر وہ کہنے لگے جی بیٹھ کر بات چیت کرنے میں کیا اس میں برائی ہے۔ پھر عمران خان صاحب نے خود کہا وہ حکومت کے ساتھ بات چیت کرنے کو تیار ہے۔ سو تھوڑا سا وہ امپیکٹ ہمیں نظر آیا تھا، لیکن اچانک لگا ہے کہ خان صاحب کو کہ نہیں، کہ بات جو ہے نا بن نہیں رہی، جو میں چاہتا ہوں، جو میری وہ ڈیمانڈ ہے وہ پوری نہیں کی جا رہی۔ ان کی ایک ڈیمانڈ ہے نئے الیکشن کروائیں اور نیا آرمی چیف جو ہے وہ نئی حکومت اپوائنٹ کرے۔ سو ساری کہانی جو ہے نا نئے آرمی چیف کے گرد آ کر وہ ہوگی۔ ویسے اس یہ ملک اور قوم کی قسمت دیکھیں، ہر وزیر اعظم اپنا آرمی چیف چاہتا ہے کہ اس کا خیال ہے کہ اگر آرمی چیف میں اپنی مرضی کا لے آؤں گا تو میرا اقتدار جو ہے نا بچ جائے گا۔ اینڈ ویری انٹرسٹنگلی، اس سے پہلے کہ میں اپنے اصل ٹاپک پہ ہوں کہ عمران خان صاحب جو یہ بات کہہ رہے ہیں کہ جناب کہ میری پارٹی کے اندر بھی کچھ لوگ ہیں جو میرے خلاف وہ کنسپیریسی کر رہے ہیں یا ڈبل کراس کر رہے ہیں، مطلب یہ وہ میرے ساتھ بھی ہیں اور اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ بھی ہیں، تو اس پہ بھی خاصی ایک اندرونی سٹوری میرے پاس ہے، وہ میں شیئر کرتا ہوں کہ کون کون لوگ جو ہیں ان سے خوف زدہ ہیں خان صاحب سے، یا وہ یہ سمجھتے ہیں کہ خان صاحب جو ہیں وہ اپنی پارٹی جو ہے نا پارٹی کے لیے بڑا خطرہ بنتے جا رہے ہیں، ان کے لیے پرابلم ہونا شروع ہو جائیں گے، اور انہیں سمجھ نہیں آ رہی کہ وہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ کھڑے ہوں یا وہ عمران خان صاحب کے ساتھ کھڑے ہوں، جس میں یہ یقینی طور پر چودھری پرویز علی صاحب بھی شامل ہیں کہ وہ بھی سوچنے پہ مجبور ہو گئے ہیں کہ خان صاحب تو سوسائڈل ہوئے ہیں اور وہ ان چیزوں کا کوئی خیال نہیں کر رہے۔ تو لہٰذا چودھری صاحبان کے بارے میں بھی اطلاعات آ رہی ہیں کہ وہ بھی اپنے سائڈز اور اپنے آپشن جو ہیں دیکھ رہے ہیں، کیونکہ مستقل پارٹنر جو ہیں وہ اسٹیبلشمنٹ کے پنڈی کے ہیں۔ عمران خان صاحب کے ساتھ ان کی لائلٹیز اتنی نہیں ہیں، ان کو یہ پتہ ہے کہ وقتی طور پر خان صاحب کا ایک ہے کرزما ہے، یہ پاور کوریڈورز کو وہ آ کے ان کو شیک اپ کر رہے ہیں، لیکن مستقل جو ہیں وہ یہاں پر وہ ہماری اسٹیبلشمنٹ ہے۔ تو لیکن خان صاحب جو ہے نا اس جو مستقل امیج تھا، ان کی متھ تھی ہماری اسٹیبلشمنٹ کی، اس کے بڑے برے طریقے سے انہوں نے شیٹر کیا اور بڑا مطلب اوپنلی کیا۔ اتنی جیسے میں نے کہا جو ان کا خوف تھا، دبدبا تھا یا مینوور مینیج کرنے کی ان کی کیپیسٹی تھی، اس کو انہوں نے ہلا کر رکھ دیا۔ ان کے اپنے رینکس میں بھی پرابلم ہے کہ جناب کہ اب ان کا کیا کریں ہم۔ وہ تو یہ سمجھتے تھے کہ ہم خان صاحب کو مینیج کر لیں گے اور یہ کنٹرول کر لیں گے۔ اب وہ جو اپنی ان کی پروڈکٹ تھی، خان صاحب لاکھ کہتے رہے جی میں ان کی پروڈکٹ نہیں، پروڈکٹ تو ہیں انہیں کی، وہ اب ان کے سے مینیج نہیں ہو رہا۔ خیر اس میں بعد میں آتا ہوں کہ خان صاحب کی اپنی پارٹی کے اندر کیا چل رہا ہے اور ان کو خود کیا ان کو محسوس ہو رہا ہے اور ان کا فیوچر کیا ہے اگر وہ لوگ جو اگر خان صاحب سے ہٹ کر وہ ہٹتے ہیں۔ تو میں بات یہ کہہ رہا تھا، اس میں آتا ہوں پھر ابھی تھوڑی دیر میں 1-2 منٹ میں، کہ اپنی آرمی چیف لا کر آپ کچھ کر سکے ہیں اپنا، مطلب مجھے سمجھ نہیں آتی کہ یہ کیوں ہمارے اندر یہ جنون آ کسی کا بھی، صرف میں خان صاحب کی نہیں بات کر رہا، مطلب بھٹو صاحب کو دیکھ لیں، وہ جنرل ضیاء کو وہاں سے 7ویں نمبر سے، وہ 7ویں نمبر پہ تھے، اس پہ جونیئر تھے یا اس پہ رینک سے اس میں تھے، وہ یہ اس کی میرٹ لسٹ کہہ رہے ہیں، 7ویں سے اٹھا کر ان کو آرمی چیف بنایا ود ان 1.5 ایئر۔ سر یہ بھٹو صاحب کی حکومت بھی انہوں نے الٹا دی تھی اور ان کو 3 سال بعد پھانسی بھی لگا دی تھی، اپنا بندہ تھا، اور ان سے زیادہ مدعب آدمی وہ نظر ہی کوئی نہیں آتا تھا جتنی وہ ان کی بھٹو صاحب کو خوشامد کرتے جنرل ضیاء الحق صاحب۔ آپ سوچ نہیں سکتے اگر کتابوں میں پڑھیں، یا لوگ ابھی بہت سارے زندہ ہیں جنہوں نے دیکھی ہوئی ہیں ساری چیزیں۔ ایسے نواز شریف صاحب کو بڑا شوق تھا، میاں صاحب کو تو انہوں پتہ ہے، انہوں نے تو یہ انٹروڈیوس ہی یہ کروایا تھا، اپنا بندہ ہونا چاہیے۔ اچھا یہ خوف کہاں سے ہے؟ جنرل ضیاء سے شروع ہوا ڈیفینیٹلی، اس سے پہلے جنرل ایوب خان صاحب، وہ ایک علیحدہ ہسٹری
एक हिस्ट्री है। बेनज़ीर भुट्टो साहबा की हुकूमत भी टूटी जब उसमें आके 6 अगस्त 1990 को, या नवाज शरीफ साहब की बाद में टूटी मार्च अप्रैल उसमें 93 में, या बाद में फिर बेनज़ीर भुट्टो साहबा की हुकूमत टूटी उनकी 96 में, जब फ़रूक लगारी से और जनरल करामत साहब आर्मी चीफ थे। फिर हमने देखा 12 अक्टूबर हुआ, उसके बाद उनके जहनों में बैठ गया है हर प्राइम मिनिस्टर के कि अगर आपने इस मुल्क को अपनी टेन्योर पूरी करनी, हुकूमत करनी, तो आर्मी चीफ आपके साथ हो। कि सदर पाकिस्तान जो है वो मिल जाता है, फ़ौज के साथ मिल के आपकी हुकूमत तोड़ देते। उस वक्त ये थी उनके पास क्लासेस थी 58(2)B थी, बाद में तो मार्शल आना शुरू हो गए। सो वो स्ट्रांग एक जहन में है कि हमारा चीफ होगा, उसके बाद हम सिक्योर होंगे। तो क्या आप सिक्योर हुए हैं? भुट्टो साहब सिक्योर हुए, नवाज शरीफ साहब हुए, चले इमरान खान साहब सिक्योर हुए। अभी जो कुछ हुआ वो कहते रजीम चेंज हुआ तो फ़ौज ने मेरी मदद नहीं की। भाई आपने तो एक्सटेंशन दी थी, आप तो खुद कहते थे कि 1 पेज, और बहुत सारी आप तारीफ़ें करते होते थे उन्हें जनरल साहब की, और बहुत सारी 101 उनकी खूबियाँ बताते थे जो शायद जनरल साहब को खुद भी नहीं पता होंगी। आपको लगता है कि नहीं अब भी मेरा होना चाहिए? मुझे मतलब आई एम एट लॉस टू अंडरस्टैंड। वो कहते हैं ना कि एक सुराख से एक दफ़ा ही डसा जा सकता है। तो ये पाकिस्तानी हमारे सियासतदान पॉलिटिशियंस हैं, इतने कमज़ोर हैं, इतने गए गुजरे हैं कि अपनी परफॉर्मेंस पे ये नहीं खड़े होना चाहते, अपनी स्ट्रेंथ पे ये नहीं खड़े होना चाहते, अपने करैक्टर पे नहीं खड़े होना चाहते। भाई आप खड़े हो जाएं ज़रा, भाई मुझे नहीं चाहिए जी, वो ठीक है, वो सीनियर लगा देंगे, क्या फ़र्क पड़ता है आपकी से? अगर आपने अपने लगा कर देखें ना, अपनों को एक्सटेंशन दे के आपने दे के देखी है ना, तो एक ये काम भी करके देख लें कि वो सीनियर जो है उसको एलिवेट कर दें चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के तौर पर, ठीक है, उसके बाद बात ही ख़त्म हो जाए। नहीं, आप कहते हैं नहीं कि वो जो अपॉइंटमेंट जो है ना वो हम नहीं करने, उस हम के चक्कर में पूरे के पूरे इंस्टीट्यूशन हमारे वो हो रहे हैं, हाल्ट हो रहे हैं। ऑफ कोर्स इंस्टीट्यूशन की भी इसमें होंगी, उनको भी एहसास होगा कि हमने कहाँ ब्लंडर मारे हैं। बहुत ज़्यादा पॉलिटिक्स में, मैं अभी भी समझता हूँ, मैंने कई दफ़ा कहा भी है, बहुत ज़्यादा एंटर हुए पॉलिटिक्स में, जिससे उसका नुकसान हुआ है कि उनको दूर रहना चाहिए था, इंटेलिजेंस एजेंसीज को रहना चाहिए था, अगेन इदारे को रहना चाहिए। अगरचे वो कह सकते हैं कि ये वज़ीर-ए-आज़म हमें कहते हैं कि पॉलिटिकली तौर पर मेडलिंग करें, ये खान साहब उनसे कहते थे जाएँ जी बिल पे उनको राज़ी करें, इंटेलिजेंस एजेंसीज को कहते थे वोटिंग में मुझे बंदे चाहिए, मुझे अरेंज करके दो, ये सारे नवाज शरीफ साहब भी कहते थे। सो आपका सारा ये दारोमदार, आप डराते हैं अपने MNAs को, अपने वज़ीरों को, अपने कंस्टिट्यूएंट्स को, किस इंटेलिजेंस एजेंसी से? इंटेलिजेंस चीफ भी अपना होना चाहिए, आर्मी चीफ भी अपना होना चाहिए, ताकि हम डरा सकें और पार्लियामेंट को चला सकें। इसके पीछे ये फिलासफी है, और कोई हमें कोई कुछ ना पूछे, कोई हमें कुछ ना कहे, क्योंकि चीफ DGI से आर्मी चीफ हमारे लगाए हुए हैं, लिहाजा हम जो भी करें उसके बाद नहीं होना चाहिए, जिससे प्रॉब्लम होते हैं और होते हैं। खैर ये तो एक साइड है। खान साहब भी मेरी बड़ी दिली ख्वाहिश है, मैं कई दफ़ा कह चुका हूँ, एक मौका मिलना चाहिए खान साहब को, अपना चीफ लेकर आएँ। और मैं आपको शर्तिया कहता हूँ कि भुट्टो साहब की तरह विद इन 6 मंथ ये सारा आपका ना हो जाए, मुझे कहिएगा, क्योंकि खान साहब का वही स्टाइल होगा जैसे नवाज शरीफ साहब का था, भुट्टो साहब के हमने आपको लगा। अच्छा ये समझ लेते हैं हम हमारे वज़ीर-ए-आज़म कि अब क्यों हमने इनको लगा दिया है 3-4 लोगों से ऊपर, अब इन पे हो कि आर्मी चीफ पे ये बिल्कुल लाजिम है कि वो हमारे एक तरह के आके मुलाजिम, ज़ाती मुलाजिम की तरह ना बिहेव करे, जो मुश्किल हो जाता है। साफ ज़ाहिर है आप उनको लेकर आएंगे, पॉलिटिक्स में प्रॉब्लम पैदा होंगे, और वो हुए हैं, हम देख रहे हैं। खैर अब अगला सवाल ये है कि इमरान खान साहब को ये है कि जनाब डबल क्रॉस हो रहा हूँ मैं। डबल क्रॉस क्या है कि मेरे नज़दीक जो लोग हैं वो उसके साथ मतलब फ़ौज से हमदर्दी रखते हैं या उनके साथ ज़्यादा सिंपथाइज़र हैं, उनसे पूछे, मेरी 2-3 लोगों से बात हुई है, वो उल्टा डरे हुए हैं खान साहब से कि ये जनाब खान साहब जो हैं ये वही काम कर रहे हैं जो अल्ताफ़ हुसैन साहब या नवाज शरीफ साहब ने किया था। कि आपको याद होगा नवाज शरीफ साहब की तकरीर नबी साहब को डरा दिया था गुजरांवाला में, उस वक्त मैंने आपको स्टोरी शेयर की थी कि बड़े बड़े इनके पार्टी के लोग डर गए थे। उन्होंने मुझे 2-3 ने बताया कि मियाँ साहब खुद तो लंदन बैठे हुए हैं और हमारे लिए प्रॉब्लम पैदा कर दिए हैं कि हमारे ऊपर नैब केस हैं, अभी हम जमान तो डर गए थे बाकी। और मुझे याद है 10-15 दिनों के लिए टीवी चैनल से गायब हो गए थे, वो बयाने को सपोर्ट करने को तैयार नहीं थे। वही अब काम जो है वो खान साहब की पार्टी के साथ होना शुरू हो गया कि वो लोग डर गए हैं कि खान साहब का जो बयानिया है जो उन्होंने तकरीर किया चकवाल में, उसके साथ कैसे खड़े हो। मतलब शाह कुरैशी साहब जो हैं वो डरे हुए हैं, साफ ज़ाहिर है वो कैसे अफोर्ड कर सकते हैं। अच्छा फवाद चौधरी साहब की कोशिश होती है कि दरमियानी रास्ता रखा जाए इस्टेब्लिशमेंट के साथ भी, इमरान खान साहब के साथ, क्योंकि वो समझते हैं पावर यहीं से आती है, अल्टीमेटली हमने यहीं से लानी है। फिर परवेज़ खटक साहब हैं, असद उमर साहब हैं, अब ये 3-4 लोग हैं जो आर्मी के साथ मुज़ाकरात कर रहे थे, या फैसल वाटर साहब हैं, ये दरमियान में ये लोग जो हैं इनके दरमियान में मैसेंजर का रोल अदा कर रहे थे कि ये डिफरेंसेस जो हैं उनको थोड़ा सा आके ब्रिज करने की कोशिश की जाए। अब उन पे जब ये लोग जाते थे तो डेफिनेटली जब इनके मुज़ाकरात होते थे मैसेंजर के तौर पर, तो ये भी उनको बताते थे अपनी साइड। जो खान साहब के और लोग हैं वो ये समझते हैं कि नहीं, ये जो लोग जाते थे तो शायद अपना CV लेकर जाते थे। सबसे ज़्यादा जो शक किया जाता था असद उमर साहब पे और शाह कुरैशी साहब पे होता था। माजी में हमने देखा कि ये उस फवाद
चौधरी साहब उस पर बड़े एतराज़ात करते रहे, फिर फैसल वाडा साहब ने तो ओपनली कहा है कि ये जनाब सांप हैं जो हमने पाले हुए हैं। इन बातों से अब इमरान खान साहब भी कन्विंस हो गए हैं, फैसल वाडा साहब की और दीगर लोगों की, कि जनाब आपकी पार्टी में ऐसे सांप आपने पाले हुए हैं जो आपके साथ उठते बैठते खाते पीते हैं, आपके दरबार में आपके खुशामदे करते हैं, उधर जाके उनके साथ आके मिल जाते हैं। देखिए खान साहब तो किसी की सुनते नहीं है। कि मतलब ये है कि मैंने इस्मान वाला फार्मूला जो है वो कहते हैं शायद अप्लाई हो सकते हैं, और कल वो खान साहब अगर होते हैं उस डिसक्वालीफाई होते हैं तो फिर उनमें से किसी का चांस बन सकते हैं। सो वो अच्छे बन के टाई पहन के सूटेड बूटेड होकर बड़ा अच्छा बिहेव करते हैं एस्टैब्लिशमेंट के साथ, अपने आप को कैंडिडेट के तौर पर पेश करते हैं। सवाल ये कि जब खान साहब भेजेंगे एक्सट्रीम लाइन वो रखेंगे तो वो जो लोग जाएंगे, मतलब जिनके मैं नाम ले रहा हूँ, शाह कुरैशी साहब ने खुद कहा है जी मैं उनकी इमरान खान साहब की मर्ज़ी से मिलता था, साफ जरा उनकी मर्ज़ी से मिलते होंगे। जिनको खान साहब खुद भेजते थे अब उन्हीं पे शक होना शुरू हो गया कि एस्टैब्लिशमेंट के साथ मिल गए। उनको ये लग रहा है कि खान साहब ने पोजीशन ले ली है। जिस तरह की तकरीरें हो रही तो हमारा तो वापसी का कोई फौरी तौर पर रास्ता तो नहीं नज़र आ रहा। खान साहब को एक और चीज़ का एतमाद है कि बेशक मुझे डिच करें, छोड़ जाएँ, भाग जाएँ, कुछ भी करें, मेरी इतनी पॉपुलैरिटी है कि मैं खंभे को भी अगर खड़ा कर दूंगा टिकट उसको वोट मिलेगा। सारे लोग जो है माँ सिवाय मतलब है कोई एक आध इनमें से होगा, बाकी तो मरहून मिन्नत है इमरान खान साहब के। वो तो ठीक कह रहे हैं कि मेरे बगैर तो कोई जीत नहीं सकते, कोई वोट ही नहीं देगा इनको। सो खान साहब अपने उस स्ट्रेंथ पे बैठे हुए हैं कि जाएँ जी अकेले लड़कर दिखें, अगर मुझे डिच करेंगे तो वही अशर होगा जो कभी जो बेनज़ीर भुट्टो साहब को छोड़कर जाते थे, जो उनके अंकल से साथी थे, सारे के सारे नाकाम हुए। खान साहब अब आके उस पोजीशन पे खड़े हुए हैं। सो बड़ी इंतहाई एक डेलिकेट पोजीशन है। वो खान साहब से डर गए, उनकी पार्टी के लोग जो बड़े लोग हैं वो इनसे डर गए हैं, और वो खान साहब को कोई डर नहीं है। वो नहीं समझते, वो समझते नहीं मैं चीज़ें मैनेज कर रहा हूँ, क्योंकि उनका ये ख्याल है कि जितना आर्मी को या इनको हमारे जनरल्स को दबाया जाए, प्रेस किया जाए ना, ये उतने ही आके मेज़ पे आते हैं और आपको मर्ज़ी की डील कहते हैं। जिसकी सबसे बड़ी मिसाल वो उसकी नवाज़ शरीफ और मरियम नवाज़ साहिबा की देते हैं कि उन्होंने तकरीरें की, उनको पावर में लेके, और मैं भी करूँगा, मुझे भी लेके आएंगे। सो बेसिकली एस्टेब्लिशमेंट का टेस्ट है कि इस दफ़ा खान साहब की जो बम्बार्डमेंट है और बड़ी खौफनाक बम्बार्डमेंट हुई है, इसका क्या वो हल निकालते हैं। क्या वो दोबारा खान साहब की ये टर्म पे मर्जी पे वो आने को तैयार हैं? क्या ये सारा कुछ जो काम किया था उन्होंने उसको रिवर्स करने के तैयार हैं? वो फिर नया चीफ जो है वो खान साहब की मर्जी से लगेगा, इलेक्शन के बाद लगेगा, उस वक्त डेफर किया जाएगा। सो खान साहब ने बहुत सारे मसाइल जो हैं वो उन्होंने पैदा कर लिए हैं। दूसरी तो हुकूमत जो वो कह रही है नवाज शरीफ साहब से मशवरा करके नया चीफ जो है ना हम लगा देंगे नवंबर में। उसके साथ जो दिन गुजरता जा रहा है खान साहब के गुस्से में, एंगर में, फ्रस्ट्रेशन में, वो उसमें इजाफा होता जा रहा है। अगला अब उसमें जलसा करेंगे, कोई पता नहीं चलता कि फ़ौज की तारीफ़ें शुरू कर देंगे, जर्नलों की तारीफ़ें कर देंगे, या फिर नेक्स्ट लेवल पर जाकर करेंगे, क्योंकि वो यही कर रहे हैं। किसी जलसे में ज़्यादा तकरीर सख्त करते हैं तो किसी में लो कर देते हैं, किसी में चढ़ा देते हैं, किसी में गिरा देते हैं। बहरहाल उनके अपनी पार्टी के अंदर बहुत बड़ा एक पैनिक है इस वक्त कि खान साहब पार्टी को किस तरफ लेकर जा रहे हैं। और खान साहब को बड़ा एतमाद है भुट्टो साहब की तरफ कि पार्टी मेरी है, ये कुर्सी मेरी है, जब तक मैं हूँ मेरा वोट बैंक है और मेरे अलावा कोई भी नहीं है। और ये बात उनकी ठीक भी है कि इस वक्त ये पीटीआई जो है ना, पीटीआई इमरान खान है, उनका जो उनकी फॉलोइंग है वो बहुत बड़ी स्ट्रांग है। कोई पार्टी के अंदर ये बंदा इस वक्त इस पोजीशन में नहीं है कि वो इस वक्त इमरान खान साहब को चैलेंज कर सके। बिकरिंग हो सकती है, मतलब पीठ पीछे आपको मुझे 100 बातें बता देंगे सारे पार्टी लीडर, लेकिन इतनी जुर्रत उनमें नहीं है कि इमरान खान साहब को ओपनली वो कन्फ्रंट कर सकें।